Good morning, class. Welcome to Vishnu One app. Now we all have completed chapter 8. I am making this video. This is the summary of chapter 8. So those who have not attained that time in the Google Meet class, they can go through this video, understand chapter 8. Okay. So there is a topic in chapter 8, comparing quantities. So in this chapter we cover the topic first, percentage. So first of all, what is percentage terms? The term percent means every 100 or per 100, मीन्स हर 100 पे वैल्यू कितनी है. जैसे आउट ऑफ 100 हाउ मच. सपोज इफ़ यू गॉट 68%, ओके 68%, so it means out of 100 you got 68 number. So either if we write like this 68 upon 100, we can write it like 68%. हम इन दोनों को ये वाइस वर्सा इसको रिवर्सिबल है. 68% को 68 अपॉन 100 लिख सकते हैं और 68 अपॉन 100 को 68% लिख सकते हैं. ओके, सो now in this one there is the following. How you something is how you convert percentage into decimal, how you convert percentage into fraction, how you convert fraction into percentage, how you convert decimal number into percentage. So let do. First one is fraction into percentage. So for this example, 2 upon 5, so we just multiply this fraction by 100%. So 5 ones are 5, 5 20s are, so it comes 40%. Sometime if you got like 7 upon 8, so you can do like 7 upon 8 into 100%. So 4 2s are 8 and 4 25s are, so 25 into 7 how much? 35, 175 upon 2, this much percentage. Now second one is fraction into decimal, sorry, percentage into decimal number. परसेंटेज वैल्यू को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे. So if it is given 8%, so you can write 8 upon 100. Now how many 0 are here in the denominator? 2. So you have to put decimal point before 2 digit. 8 0 point. Okay, because in the numerator there is only one digit, and how you have to put the decimal before 2 digit from the right side. So from the right side you start counting 8 first number, so there is no second number, so you add 0, then put the decimal point. For example, 12.35%, so you can do like 12.35 first of all upon 100, and when we remove the decimal sign, we take out here 100, write down 100. Now total 1235 upon 10,000. So how many 0 are total 0 here? 4. So you have to put the decimal point before 4 digit. 1 2 3 4, so 0.1235. Okay, now decimal number into
percentage into ratio. How you convert percentage into ratio? So to change percentage into ratio, first of all we have to change the percentage into fraction. If it is given 75%, so first of all you have to convert 75 upon 100, then cancel it. So 25 3s are and 25 4s are. This is your fraction. Now you can write like this, 3:4. Okay. Now second topic is profit loss, profit and loss. So there is a term SP and CP. So SP is the selling price and CP is the cost price. Means when you go to a shop and purchase any item, purchase any article, you paid some money to the shopkeeper for the article. Okay, you paid some money for the article to the shopkeeper. The amount you paid to the shopkeeper is the cost price of the article. जितना पैसा आप शॉपकीपर को पेड करते हो उस सामान को लेने के लिए, तो जो पैसा आपने दिया, दैट अमाउंट इज कॉल्ड CP. ओके. नाउ द शॉपकीपर earn the money, get the money by selling the article. So that amount become for the shopkeeper is selling price. तुमने जो पैसा दिया आर्टिकल ख़रीदने के लिए, that becomes CP for you, but the shopkeeper sell the item, so it become the selling price for the shopkeeper. क्योंकि शॉपकीपर बेच के वो पैसा कमा रहा है, इसके लिए सेलिंग प्राइस कहलाएगा, और तुमने उस आइटम को ख़रीदा है पैसे से, तो तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस कहलाएगा. तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस कब होता है? प्रॉफिट लॉस तब होता है जब SP हमारा बड़ा हो जाता है CP से. क्योंकि शॉपकीपर ने अगर बेचा हुआ आइटम तो उसने भी तो कहीं से ख़रीदा होगा, तो उसने कम में ख़रीदा होगा और तुम्हें ज़्यादा में बेच रहा है. ये सपोज़ तुमने एक पेंसिल लिया 10 रुपीज़ में, तो वो कॉस्ट प्राइस तुम्हारे लिए बन गई. लेकिन उसी पेंसिल को तुमने 12 रुपये में बेच दिया, तो उसकी सेलिंग प्राइस तो बढ़ गई तुम्हारे CP से. तुमने दिया था 10 लेकिन पाए 12, तो वहाँ पे प्रॉफिट होगा. तो सेलिंग प्राइस जब बड़ा होगा CP से, वी अर्न प्रॉफिट. अब कितना प्रॉफिट अर्न होता है ये देख लीजिए. तो प्रॉफिट अर्न निकालने के लिए SP माइनस CP करना पड़ेगा. एक होता है जब आपसे बोलेगा प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए माइनस करने में जो भी वैल्यू आए, यहाँ पर SP माइनस CP करने में जो भी वैल्यू आए उसको CP से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आपका आएगा प्रॉफिट परसेंटेज. इसी में लॉस क्या होता है? लॉस होता है जब CP हमारा बड़ा होता है SP से. तो लॉस निकालने की वैल्यू क्या है? CP माइनस SP. इसी तरह लॉस परसेंटेज निकालने की फॉर्मूला क्या है? CP माइनस SP. कंपेयर करेंगे CP से अपॉन 100%. क्लियर? अब एक चीज़ और है, इसमें जान लीजिए. चलो इतना पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हुआ है थोड़ा सा देख लेना उसमें एग्जाम्पल यूज़ करके. ओके. आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट. इसमें एक वर्ड आएगा प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या होता है? जब आप किसी से पैसे उधार लेते हो, सपोज फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम द मनी लेंडर, किसी से भी, तो द अमाउंट यू बोरोड फ्रॉम बैंक और एनी मनी लेंडर, दैट अमाउंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. जो पैसा आप उधार लेते हैं, बोरोड मनी, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. आपने उसको कितने सालों में वापस करने की प्रॉमिस करी है, सपोज 3 ईयर 2 ईयर्स, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने उस पैसे को लिया है, दैट टाइम वो कहलाएगा आपका साल. कितने टाइम के लिए लिया है, टाइम कहलाएगा. तो टाइम हमेशा आपको ईयर में करना है, ध्यान रहे चीज़. टाइम को आपको हमेशा ईयर में रखना है. इफ इट इज़ गिवन इन डेज, तो देन यू हैव टू डिवाइड द नंबर ऑफ डेज बाय द 365. और अगर मंथ में दिया है तो उसको 12 मंथ से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. टाइम हमेशा आपको ईयर में लेना है. और सेकंड थर्ड चीज़ आती है रेट. रेट क्या है? भाई आपको कोई पैसा अगर दे रहा है कोई बैंक या मनी लेंडर, तो ऐसा देगा नहीं कि आज 1000 रुपये देगा और 3 साल बाद तुम मुझे 1000 ही रुपये वापस करोगे. ऐसा तो होगा नहीं. उसके बदले वो कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहेगा, तो उसके लिए वो कुछ रेट लगाएगा. कितने रेट पर लेगा,
जैसे 2%, 3%, 4%। अब ऐसा नहीं कि तुमसे उसने कहा कि मैंने 1000 रुपये दिया है और तुम मुझे अगले 3 साल बाद 1500 रुपये दे देना। उसका एक रेट होगा ना, किस हिसाब से कि 2%, मतलब 1000 रुपये का 2% लेगा। तो अगर 1000 रुपये का 2% कितना हो गया, अभी आप परसेंटेज उसमें परसेंटेज पढ़े हैं 2% ऑफ 1000, तो 2/100 इंटू 1000, ये आ गया 20 रुपये, मतलब 1 साल का 20 रुपये हो जाएगा। तो 3 साल के लिए तो कितना हो गया 60 रुपये, मतलब 1000 रुपये दो गई, साथ में और क्या दे दोगे 60 रुपीज़। तो टोटल ये दोनों को जो ऐड करने में जो आएगा P प्लस SI, वो आपका हो जाएगा अमाउंट। तो यहाँ SI निकालने का तरीका है, जो इंटरेस्ट हम बता रहे हैं 2% करके, उसका एक तरीका है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका SI आ जाएगा। और अमाउंट निकालना है कि 3 साल बाद आप उसको टोटल कितना पैसा दोगे, तो वो निकालने का फॉर्मूला है P प्लस SI। यही बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ करने हैं। कहीं कहीं आपको SI निकालने का फॉर्मूला ये भी मिल जाएगा, A माइनस P। अगर अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, दोनों को माइनस कर देना, तब भी SI फाइंड हो जाएगा। ओके, बस इस चैप्टर में यही चीज़ बेसिक थी जो मेन है। सो ओके, सो थैंक यू क्लास।